السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، اللهم انفعنا بالقرآن العظیم، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن، اللهم نجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما اجمعین۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ آیا نمبر سورہ یونس کی آیا نمبر 23 ہو گئی 23 ہاں 24 بھی اسی سے 24 ہے، وہی مضمون آ رہا ہے۔ اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما تاکل الناس والانعام یاکل الناس۔ یاکل الناس، ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ یاکل الناس، وہ کھاتے ہیں، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، ناس عوام الناس، لوگ کھاتے ہیں۔ یعنی یہاں بتایا جا رہا ہے کیا؟ دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی یہ جو جس طرح بھی زندگی میں لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، اس سے پہلے کی آیت بھی دیکھیے، کیا آیا تھا؟ بغی، بغا یبغی آیا تھا نہیں؟ جو اللہ دیتا ہے، زیادہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان میں بہت خوش ہو جاتا ہے، بغاوت میں بہت سرکش۔ کرانے لگ جاتا ہے۔ ہاں، کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ سے دعا مانگتا ہے، پھر وہ جب نجات دے دیتا ہے، پھر وہی پرانی روش پر تھوڑے دن ہی گزرتی، پھر زیادہ دن نہیں گزرتے کہ وہ زمین میں فساد مچانا شروع کر ڈالتا ہے، پھر وہی پرانی روش پر، وہی کافرانہ حرکت پر آ جاتی ہیں کہ کافر بولے تو اللہ کا انکار نہیں، کفران نعمت، ہمارے پاس سب کچھ رہتا ہے پھر بھی ہے نا کیا نہیں رہتا اس کی شکایت کرتے رہتی نا، اسے بولتے ہیں سب کفران نعمت، کسے بولتی؟ جو اللہ کا شکر جو ہے اس پر شکر ادا کرنا، جیسا بھی ہے اللہ بہت اچھا رکھا ہے۔ اللہ بولتا ہے کان الانسان کفورا، کان الانسان کفورا، بہت ناشکرا انسان، بہت ناشکرا، ہر چیز رہتی ہے پھر بھی ہے نا نہیں رہتی نا، جو دوسروں کو دیکھ کر وہ نہیں ہے میرے پاس جو اس کے پاس ہے، اس کی بغا یبغی، اس کے اس میں یہ بغا یبغی جو ہے دو سینس میں بھی آتا ہے، اچھے سینس میں بھی آتا ہے اور فعل مضموم میں بھی آتا ہے۔ فعل مضموم بولے تو نیگیٹو سینس میں، غلط سینس میں، فعل مضموم، مضموم، میم، میم زال، 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 میم وہ میم، یہ کیا معلوم ہے؟ مذمت بولتے نہیں، مذمت، کیا مذمت کر رہی ہیں بھائی، کیا ملامت، ملامت کے ہی سینس میں ہوتا ہے مذمت۔ ہاں، یہ فعل مضمون کیا ہے بولے تو کبھی ہے نا الٹے سینس میں جاتا ہے نا، ہر چیز الٹے سینس میں بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے۔ اب بغا یا کیسا مضموم بولے تو اب یہاں جو آیا وہ مضموم ہے، فعل مضموم ہے، سرکشی کرنے لگ جاتا ہے، الٹے کام کرنے لگ جاتا ہے، خود کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، پیسہ آ گیا، تھوڑا بہت پیسہ آ گیا، اللہ کوئی مصیبت آئی تھی ٹلا دلیا، نجات مل گئی تو انہیں کیا کریا؟ سرکشی کرنے لگے، اللہ بول رہا ہے سرکشی کرنے لگ جاتا ہے، پھر تکبر کرنے لگ جاتا ہے، اترانے لگ جاتا ہے۔ اب یہ اچھے سینس میں کیسا آتا ہے بولے تو بغا یبغی، چاہنا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے بولے تو چاہنا۔ اب یہ سورہ جمعہ میں بھی آتا ہے، جاؤ نماز کے وقت کا تم نماز میں ہی رہو، کسی دوسرے کام کی طرف نہ کرو خیال، یہ ہو جانے کے بعد کیا کرو؟ پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ، پھر یا بغو، جاؤ تلاش کرو، تلاش کرنا، ڈھونڈنا، چاہنا، یہ سارے مفہوم میں آتا ہے۔ کیا تلاش کرنا؟ میرا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی روٹی تلاش کرو۔ لیکن یہ جو 12:30 سے اذان سے 2.5 گھنٹے تک یا کچھ جو نماز ہوتی ہے، وہ پیریڈ میں تم سارے کاموں کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف ہو جاؤ،
اس کے بعد تلاش کرو. اب یہ تلاش کے ورڈ کو بھی بقایبقی ہی آیا ہے. اب یہاں مضموم کے اترانے کے تکبر کرنے کے زیادہ اکڑنے کے یہ سے بھی یہی آیا ہے. تو ایسے کئی یہ ہے الفاظ ہیں, آلموسٹ آل ہیں, وہ جب آتے ہیں تو میں بتاتی رہتی ہوں. تو یہاں جو پچھلی اس سے کنیکٹڈ ہے یہ کہ انما متاع الحیات دنیا, اللہ دے رہا ہے مثال دنیا میں زندگی پانی کی مثال ہے. انما یقیناً یا محض مثل المثال حیات دنیا دنیا کی حیات ہے. کما ان بولے تو پانی جیسے کہ جیسے پانی کہ کی جیسے جیسے کہ مثال کے جیسا ہے. انزلناہ ہم نے نازل کیا مثال کے طور پر من السمائی آسمان سے. آسمان سے کیا نازل کیا؟ پانی نازل کیا. کما ان انزلناہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا تو کیا ہوا؟ فاختلط به نبات الارض. فاختلط یہ اردو ورڈ ہے, یہ اس کو اردو ورڈ فا کو نکال کر آپ تلاش کیجئے. اردو ورڈ بولیے کوئی. نہیں نہیں قریب ہے آپ, مانا بدل جاتا ہے. کمبائنڈ ایجوکیشن کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ کمبائنڈ ایجوکیشن. ہاں کو ملا جلا سے اختلط. میں اس کرتی ہوں خلط ملت کر نکلنا نکل intermingled. ملا جلا Intermingled. نہیں ہمیں صحیح پر نہیں آ رہی اس کے آستے آواز. آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے نہیں؟ اب آ رہے اب آ رہی ہے. تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہوا تھا پتا نہیں. ہاں خلط ملت بولے تو انٹرمنگلڈ. کیا انٹرمنگلڈ؟ وہ بھی بول سکتے آپ ایک دوسرے میں ملا جلا. ملنا. ہاں انٹرمنگل بول سکتے, ایک دوسرے میں ہو جانا. ہاں کیا ہوتا ہے بولے تو آپ ایگزامپل لیجئے, اچھی بارش آ گئی تو آپ کہیں جنگل کی طرف گئے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اتنا گھنے درخت اگ گئے ہیں, یہ ایک دوسرے میں مل گئی. کسی کی جڑ نظر نہیں آتی, وہ جڑ ان کے شاخاں ان کا تنا سب ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو گئے جیسا دکھتا ہے. نہیں الگ الگ جھاڑ نظر نہیں آتا. اس کے کئی بار ہمیں معلوم ہوتا ہے کہاں آپ کہیں سیر کو جا رہی تفریح کو جا رہی کہیں گھنے جنگل میں گئے تو اس کے ٹہنیاں اس کے ٹہنیاں اور ایک جھاڑ کے خلط ملط ہو گئے رہتی, ایک دوسرے میں گتھم گتھا. گتھم گتھا بولتی ہیں اسے, گتھم گتھا ہو گئی رہتی. نہیں اسے بول رہے ہیں گتھم گتھا ہو جانا, ایک دوسرے میں مل جانا. تو فاختلط به نبات الارض. اب یہاں کہہ رہا ہے اللہ کے مثال ایسی ہے پانی برسانے کی مثال کے جیسا انسان کی زندگی ہے کہ جب پانی برستا ہے تو یہ ایسا نباتات ایسا اگ جاتی ہیں ایک دوسرے میں گتھم گتھا, یعنی زیادہ اگ جاتا ہے. اللہ زیادہ بہار دے دیتا ہے, جھاڑاں اگ جاتی ہیں, پودے اگ جاتی ہیں, فصل اگ جاتی ہے. یہ سب بہت زیادہ بہتات کے ساتھ آ جاتا ہے, بہت زیادہ فراوانی کے ساتھ آ جاتا ہے. نبات الارض مما یاکلو, مما من اور ماں کا کمبینیشن ہے, من سے ماں جو اس سے جو, یعنی یہ جو اگ گیا نا بہت زیادہ بہتات سے جو گھنا اگ گیا اس میں سے یا کلو الناس, کون کھاتی؟ لوگ بھی کھاتی, انسان بھی کھاتی, والانام کھاتی, جانور بھی کھاتی. جانور چوپائے. چارہ بھی اسی سے ہو. ہاں انعام بھی کھاتی ہیں یعنی مویشی بھی کھاتی ہیں, انسان بھی کھاتی ہیں. تو یہاں بتائی جا رہی ہے, مثال دی جا رہی ہے بارش جب برستا ہے متاع الحیات دنیا, یہ جو مل جاتا ہے اوپر آیا نا اسی کو کنیکٹ کیجئے, یہ جو مل جاتا ہے تو یہاں بہتات ہو جاتی ہے. اب انسان کو سب کچھ مل گیا. اب کیا ہو گیا, حالت کیسی ہے؟ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا.
हत्ता यहाँ तक के वो मालिक के मकान ऐसा समझने लग जाता है, सॉरी मालिक बाग का मालिक, ये बाग की बात है, बाग में ऐसा हो गया है कि पौधे एकदम ज्यादा बहुतायत से उग गए हैं, यानी अनाज फसल या फलदार दरख्त हो या कुछ भी हो तो उनकी ज्यादा बहुतायत हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है हत्ता यहाँ तक के इजा अखजत बोले तो पकड़ना, अखजा अखजत, ये ता कहीं को आया, पकड़ना। अखजा बस था ना, ता से हम्म, ता ता क्या है बोलो ये, खा ता 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 हाँ, एक मिनट मखातिब का सिगा अकुलो नहीं, मुखातिब का सीगा मुजारे में आता है, ये मुजारे का नहीं है ये सीगा, वो कहता है ता। नहीं नहीं अमल नहीं करते हो नहीं, शायद मैं नहीं बोली, आप नोट कर लीजिए, आप एक बार नोट कर लीजिए, मुखातिब फिर जब मैं पूछूं तो बोल दीजिएगा फट से। अखजत ये ताये तानीस है, ताये हाँ? तानीस बोले तो मुअन्नस का सीगा, इसे ताये तानीस ताये बोलते हैं, ताये ताये तानी तानीस बोलती हैं, हाँ ये मुजारे का यतान का सीगा नहीं है ये, इसे ताये हाँ, तानीस बोलती है, मुअन्नस के वास्ते यूज होता है ये अर्दू के मुअन्नस वास्ते यूज हो रहा है, जमीन मुअन्नस है, आए तानी ताये तानीस जमीन है, मुअन्नस ता है। अलीफ नून या सा, ता सा ता तीन अली नुक्तों वाला, ता ता तानी अलीफ ता, नून या से बोलती नहीं, अलीफ बा ता सा, ताना तानी ताये ताना तानीस, इसे बोलते हैं ताये ताये तानीस, तानी ताये तानीस, या मुतकल्लिम जैसा बोलती नहीं वैसा ताये तानीस है, बा अलिफ बा लिखती हैं, उसके बाद या लिखती हैं, या ये मुतकल्लिम लिखती, कभी उसके ऊपर हमजा भी डाल देती हैं, या ये मुतकल्लिम के वास्ते, वैसा ही ताये तानीस है ये किसके लिए यूज हो रहा है, इसके बाद जो वर्ड आ रहा है अर्दू, जमीन, जमीन मुअन्नस है, जमीन जमीन मुअन्नस मुअन्नस है, हाँ अरबी में आसमान भी मुअन्नस है, उर्दू में मुअन्नस आसमान मुजक्कर है, आसमान नीला आसमान बोलते हैं, नीला आसमान नहीं बोलते, नीली बोलेंगे हाँ, ये क्योंकि ये मुअन्नस है। हाँ मुअन्नस तो यहाँ क्या हुआ, आप नोट कर लिया ना, फिर अब आइंदा हाँ आप याद रखिएगा कि हाँ ताये तानीस है तानी जो मुअन्नस के लिए यूज होता है। अब यहाँ कहा जा रहा है जमीन के लिए ही, हत्ता इज़ा अखज़तिल अर्दु, पकड़ ली जमीन, पकड़ ली, क्या पकड़ ली, अर्दु जमीन ने पकड़ लिया, ज़ुख़रुफ़ किसे बोलते हैं, ज़ाहिरी ब्यूटिफिकेशन को बोलते हैं, हाँ उर्दू में एक वर्ड मैं चमक बोलती हूँ, रौनक हाँ रौनक, बहार, बहार आरास्ता पैरास्ता अगर को बोलती है, मालूम है, आरास्ता पैर आरास्ता पैरास्ता होना अगर मैंने बोलती है, पैर पैरास्ता क्या पैर वो, पैर हम्म? जमीन में पैवस्त नहीं 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 नहीं, डोंट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज, आरास्ता पैरास्ता होना बोले तो सर से पैर तक का ब्यूटीफाई कर लेना खुद को, अच्छा सर से पैर तक ब्यूटीफाई कर लेना, खुद को ब्यूटीफाई कर लेना, ज़ुख़रुफ़ बोले तो ये ज़ाहिरी ब्यूटिफिकेशन, आउटवर्डली ब्यूटिफिकेशन जो नजर आ रहा है। अब क्या बात को बताया जा रहा है बोले तो, बारिश आ गई, एकदम गुत्थम गुत्था हुए जैसे घने पौधे उग गए, और जमीन ने क्या कर लिया, खुद को आरास्ता कर लिया। अब फसल अच्छी उग गई तो कैसा दिखता है, जमीन खूबसूरत दिखती है नहीं, बहार आ गई, अडोनमेंट एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एडोरेंट, अडोनमेंट, यस ब्यूटिफिकेशन, पूरा ब्यूटीफाई हो गई है, फसल आ गई है, हरा भरा हो गया है, फलना रहे तो फलदार हो गया है झाड़, या फसल है तो हरी भरी पीली हो गई है, अनाज आ गया तो वो उससे भर गया है, जो कुछ भी है इससे आरास्ता हो गई है, जमीन ने खुद को उसने ब्यूटीफाई कर लिया है, अखज़तुल बोले तो पकड़ ली, उसने पकड़ ली, जमीन ने खुद पकड़ ली, जमीन ने खुद को आरास्ता पैरास्ता कर लिया, ज़ुख़रुफ़हा, अपने सिंगार को पकड़ लिया, अपने सिंगार को पूरा कर लिया, हाँ जमीर अगेन जमीन की तरफ है, हाँ हाँ जमीर जो है ये मुअन्नस की जमीर है, ये भी इसी की तरफ है, अर्दू ज़ुख़रुफ़हा, उसने अपने आप को बहुत ब्यूटीफाई कर लिया, जीनत भरा कर लिया, जीनत से मामूर कर लिया, आरास्ता कर लिया, वो ज़य्यनत, ज़य्यनत खूबसूरत कर लेना, जीनत ये है मुज़य्यन कर लेना, मुज़य्यन, खुद को मुज़य्यन कर लिया। अब इतना हो गया तो क्या हुआ, एकदम बाग को जा रहा है, वो जो मालिक है बाग का जा को देख रहा है तो ये हालत है कि अखज़तिल अर्दु ज़ुख़रुफ़हा व ज़य्यनत,
वो ज़न्ना, अब इसे ख्याल हो गया, यकीन हो गया। अहलुहा, अहलू बोले तो क्या, मकान, जमीन। मालिक, मालिक। मकान। हाँ जमीर मालिक। ये बाग की तरफ। अहलुहा, वो जो मकान मालिक है, वो जो बाग का। अन्नहुम कादिरूना, उन्हें सोच लिया। जन्ना बोले तो सोच लेना या यकीन कर लेना। उसे मालूम हो गया, उसे ख्याल आ गया, अब उसे खुशी हो गई। क्या सोच लिया, अन्नहुम के यकीनन, वो जमा का सिगा आ रहा है। अन्नहुम, हुम जमीर जमा की है, यानी बहुत से मालिकान होंगे, एक नहीं 4-5 होंगे। कादिरूना, हम कुदरत रखते हैं। अलैहा, इस पर, यानी इस बाग पर हमारी कुदरत। कितना फलता फूलता बाग हो गया है, कैसी रौनक आ गई है, क्या फल फूल आ गए हैं, कितनी फसल आ गई है, कैसी रौनक से भर गया हमारा बाग। खुश हो गए। अब काटना, आजकल में हमें जाकर काट लेती है। कितनी अच्छी फसल आ गई है। इतरारी, अल्लाह का नाम नहीं, कौन पैदा करया, किसकी तरफ से हुआ, किसका फजल है, ये उसको भूल गए। अताहा अमरुना, अल्लाह कह रहा है आ गया उस पर अमरुना, हमारा अमर, हमारा हुक्म आ गया। क्या हुक्म, कोई शुक्र का लफ्ज अदा करता, शुक्र इलाही, शुक्राने के तौर पर कोई बात करता, ये अल्लाह का फजल है, कितनी अच्छी चीजें दिया है। ये क्या भी हो सकता था, बाद समूम भी आ सकती थी, जुलूस भी दे सकती थी, क्या भी नहीं हुआ। अल्लाह उसे कितना अच्छा बनाया है, कितने अच्छे फलदार दरख्त आए हैं, कितनी अच्छी फसल आई है, ये बातें होती। और अल्लाह का शुक्र, खालिक का शुक्र अदा करता, बनाने वाले का, पैदा करने वाले का शुक्र अदा करता। कुछ भी नहीं हुआ, इतराने लग गया, ओ आ गई, अब हम कुदरत रखती, अब हम काट लेंगे, सब कुछ हमारा है। ये जब उसके दिल में बात आ गई तो अल्लाह को ये नहीं पसंद आया। अताहा, उसके ऊपर आ गया। हाँ जमीर अगेन ना बाग की तरफ है। अता, आया, हा उस पर, अमरुना, हमारा अमर। अल्लाह कह रहा है हमारा अमर कब आया, लैलन और नहारन, रात के वक्त आया या सुबह के वक्त आया, आ गया किसी वक्त। कोई आफत आ गई, कोई बाद समूम आ गया, या कोई आग का वो जो बगुला बोलती है वो आ जाता है। कभी कभी पूरी फसल झुलस जाती है, पूरा खत्म, एज इफ कुछ भी कल था ही नहीं। फजलनाहा, फिर वो हो गया, हा जमीर बाग, बाग हो गया। हसीदन, हसद किसे बोलते हैं, वो हासिन दाल हसद नहीं, हासिन दाल हसद वो जलन है। ये हसद, हाँ स्वादाल हसद फसल के फसल लिए है। काटती ना, ढेर हाँ डालती फसल ना तो। काटी हुई फसल, काटी हुई फसल के वास्ते ये जो काट, तो उसके बाद क्या भी नहीं रहता, नहीं वहाँ क्या भी बाकी नहीं रहता। हसदन का रूट वर्ड कटा हुआ, एक काट डाले बाद एक ढेर जैसा हो जाता है, देखो ढेर, उसके बाद खाली क्या भी नहीं जमीन। रहता, सूखा सूखा पड़ा रहता है, एक ढेर जैसा हो जाता है ना, वैसा हो गया। काना, गोया के, लम तगुन बिल अमसी, लम तगना, तगना बोले तो नहीं थी नहीं वहां पर। गना यगना वो अलग मफहूम में भी कुछ आता है। भी नहीं था अब वो। यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं था। बिल अमसी, फ्लरिश्ड, कोई मौजूद ही नहीं था, कोई था नहीं वहां पर, कुछ चीज थी ही नहीं, नॉट कुछ उगा ही नहीं था, कुछ उगा ही नहीं था वहां पर, फ्लरिश्ड। ऐसे लग रहा था। हाँ बिल अम्स, अम्स किसे बोलते भाई, अम्स कल को कुल, बोलते, कल कल, कल कल। कल। अब ये उर्दू अरबी का मुहाविरतन मुहाविरा लैंग्वेज है, उसे उर्दू में मैं बाद में बोलती हूँ। लम तगना बिल अम्सी, गोया ऐसा के कल तक वहां कुछ था ही नहीं, ऐसा हो गया। जमीन एकदम चटियाल हो गई, पूरा ढेर के जैसा कटा हुआ पड़ गया। अब उर्दू में क्या बोलती हमें, गोया कुछ वहां उगा ही नहीं था, कुछ था ही नहीं वहां। अब यहाँ अरबी में क्या रहा है, कल तक कुछ था ही नहीं। हमें क्या बोलती, कभी कुछ उगा ही नहीं था। उर्दू वर्ड ऐसा है, उर्दू मुहावरा ऐसा यूज करती है हमें, कभी कुछ वहां उगा ही नहीं था, ऐसी हो गई जमीन। अरबी में कह रहे हैं कि कल तक वहां कुछ था ही नहीं, ऐसा नक्शा वहां का, ऐसा नजारा वहां का हो गया कि सब कटी हुई वीरान पड़ गई थी। कजालिका, इसी तरह अल्लाह कह रहा है, जिंदगी की हकीकत इसी तरह हम बयान करते हैं। जिंदगी की हकीकत भी यही है। क्या हकीकत है,
इंसान के पास कुछ पैसा आता है एकदम इतराने लग जाता है, कहाँ से आया, कौन दिया, खालिक का शुक्र है, वो सब कुछ भी नहीं होता, इतराने लग जाता है, घर में हालत बदल जाती है, सब चीज नई नई, घर की हालत बदल गई, रौनक आ गई, आदमियों को भी रौनक आ गई, लेकिन शुक्राने की कोई बात नहीं है। हक अदा करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना, हालत बदल गई तो भी शुक्र अदा करना, हालत खराब हो गई तो भी शिकवा नहीं करना, ये है ना उसमें भी असलम। है। असलम असलम तो असलिम असलम असलम तो इसका यही है, इसका तकाजा यही है कि अच्छी हालत आई शुक्र अदा करो, कोई तकलीफ हो गई तो सब्र शिकवा करना, नहीं करना। शिकवा नहीं करना, सब्र करना। वो सब्र का फल भी बहुत अच्छा होता है, बाद में हालत अच्छी होती है, वो भी कई को आती है, उसका भी कोई है, अल्लाह बोलता है कि उसमें कोई है, खैर है उसमें भी। हालत जो बदलती है, अल्लाह जो ये देकर आजमाता है, लेकर आजमाता है, इसमें भी तुम्हारी आजमाइश होती है, और आजमाइश से क्या होता है, हमारे दर्जात बढ़ते ना, दर्जात बढ़ते, शुक्र अदा करता है, हर हाल में शुक्र अदा करता है तेरा बंदा, अल्लाह देखो से तेरा बंदा, अल्लाह से करीब भी होती। हाँ अल्लाह से करीब होती है, कुर्बत का जरिया होता है वो। जो भी आजमाइश आती है उससे अल्लाह से करीब तर होता जाता है। जैसा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल याद रख लिया तो बस, कैसा अल्लाह उनको करीब से करीब करया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इम्तिहान पे इम्तिहान, इम्तिहान पे इम्तिहान, जिंदगी पूरी गुजर गई, उसके बाद कैसे अलखाब से नवाजिया, खलीलुल्लाह, अल्लाह का दो, अल्लाह अपना दोस्त बना लिया उनको। ऐसा करीब कौन होता है, दोस्त होता है, करीबी दोस्त, करीब होता है, तो ऐसा अल्लाह से करीब होने का ही जरिया होता है। तो यहाँ ये मिसाल देकर समझा रहा है कि बिल अमसी, कल तक कुछ था ही नहीं, वैसा हो गया, कजालिका, इसी तरह, नुफस्सिलु, बोलिए ये कौन सा बाब है, नुफस्सिलु, आपको मालूम है, बहुत से लोगों को बयान। बाब है, तफसील, वेरी गुड, तफील, फस्सला, फस्सला, तफसील, तफसील, फस्सला युफस्सिलु, तफसील, तफसील। मुफस्सिलु, ये ना जो है ना मुजारे का सीगा है, नू हम मुफस्सिलु, तफसील के साथ तफसील बयान के साथ करते बयान हैं, करते हैं। हम खोल खोल कर बयान करते हैं, अल आयात, हमारी निशानियों को, आयतों को, लिक़ौमी यतफक्करून, ताकि ये जो तदब्बुर करने वाले हैं, सोच विचार करने वाले हैं, सिर्फ ऐसे ही पढ़ लेकर जाने वाले नहीं, बल्कि अक्ल सलीम, कल्ब सलीम से काम लेकर ये जो आयत पर तफक्कुर करते हैं, गौर व फिक्र करती हैं, उनके लिए ये बहुत कारामद साबित होता है। क्या कह रहा है अल्लाह, दुनियावी जिंदगी की मिसाल तो कुछ ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, जिसकी वजह से जमीन से उगने वाली वो चीजें खूब घनी हो गई जो इंसान और मवेशी खाते हैं, खूब घनी कैसा हो गई, गत्थम गत्था हो गई, इख्तलता यख्तली तो, ये जो गत्थम गत्था हो गई, एक दूसरे में मिल गई, यानी उतनी ज्यादा फसल उगाई कि ये इंसानों के वास्ते भी, मवेशियों के वास्ते भी ये कारामद हो गई, खाने पीने के वास्ते ये आ गई ये चीजें, कि जब जमीन से अपना ये जेवर पहनकर, जमीन ने ये जेवर पहन लिया, एक तमसीली अंदाज में बयान किया जा रहा है कि जमीन, शायरी अंदाज में बोली है, हाँ शायराना शायरी तखय्युल है, शायराना अंदाज, ये तखय्युल है, ये इसमें बयान किया जा रहा है कि जमीन खूबसूरत दुल्हन की तरह हो गई है, कैसे, फसल उसका जेवर हो गया, फसल जो आई, ये फल्ला आए, या नहीं तो ये जो दाने दुगने की ये फसल आई, वो क्या हो गई उसके वास्ते, एक जेवर का काम कर रही है, पीली पीली हो गई, हाँ, हरा भरा, हरे के ऊपर पीला आ गया, तो क्या हुआ, जेवर से आरास्ता पैरास्ता हो गई, सर से पैर तक, नीचे हरा है, ऊपर तने सो भी हरे रहती हैं, ऊपर जो फसल आई वो या तो पीली होगी या फल होंगे, तो ये क्या हो रहा है, बहुत खूबसूरत नजारा पेश कर रहा है, ये जेवर पहनकर जमीन खूबसूरत दुल्हन बन गई है, और सिंगार करके खुशनुमा हो गई, पूरा सिंगार, ज़ुख़रुफ़ुल, क्या आया ऊपर वर्ड, ज़य्यनत, ज़ुख़रुफ़ुहा ज़य्यनत, 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 फ़अख़ज़हा नबातुल अर्ज़ि नामो इज़ा अख़ज़तिल अर्दु ज़ुख़रुफ़ुहा ज़य्यनत, वो ज़य्यनत, हाँ ज़य्यनत, वो जो ज्यादा आरास्ता पैरास्ता हो गई, ये पूरी तरह दुल्हन के जैसा हो गई। अब आकर देखती मालिकाने बाग, आकर देख रही, खुश हो जा रही, अपने आप को फूले नहीं समा रही, ये पूरी तरह समझ लेती कि उनके काबू में है, अब आप किसी भी वक्त इसे काट सकती और इसे मुनाफा हासिल कर सकती, और को फूले नहीं समा रही, इतरा रही।
तो क्या हुआ, अल्लाह को अल्लाह का शुक्राने का एक वर्ड नहीं आया यहाँ पर। दिया तो अल्लाह ही ने है। हालांकि किसान बीज बोता है, हल चलाता है, मेहनत करता है, पानी देता है, सब कुछ है, लेकिन किसके फजल से उगता है? अल्लाह के फजल से। वरना वरना जमीन में जो बीज थी उसका हाल तो मालूम नहीं होता ना। वो जमीन में क्या कोमपल निकल रही है कि नहीं, वहीं मर जा रही है, वो मालूम नहीं होता ना। पालता है जमीन की तारीकी में, बीज को पालता है जमीन की तारीकी में है कौन? कुछ इस तरह का ये है जो अल्लाह की यानी तखलीक पर एक शेर है। गैब का इल्म अल्लाह ही को मालूम। अल्लाह ही को मालूम है। अब पहले तो गैब ये का। इंडोस्कोपी वो कुछ है, ये क्या स्कैनिंग है वगैरह पहले नहीं था। हम्म, माँ के पेट में बच्चा कैसा पल रहा है क्या क्या मालूम होता था? लंगड़ा हो क्या रहा है, भी नहीं। लुल्ला हो रहा है, नहीं नाबीना हो रहा है, नहीं सीधा पैदा हो रहा है, दुरुस्त सलामत, कुछ भी नहीं मालूम होता था। इसी तरह से जमीन में जो बीज है उसका हाल तो मालूम नहीं होता। ये अल्लाह ही के फजल से ये फसल उगती है। लेकिन ये लोग क्या समझ गए, बस हमारी ये कारामद हो गई, अब हम कहीं कभी भी इसे काट ले सकती हैं। जो ख्याल आया तो अल्लाह है ना, उसको जो नहीं पसंद आई ये बात है कि शुक्राना कभी नहीं हुआ, तो उस पर कोई आफत आ गई। तो किसी रात या दिन के वक्त हमारा हुक्म आ गया। क्या हुक्म आ गया? उस पर कोई आफत आ गई, कोई बगुल आ गया, कोई बादे समूम आ गया, कि झुलस गई वो सब, और हमने उसको कटी हुई खेती की तरह सपाट जमीन में तब्दील कर दिया। अब कुछ कटील भी मैदान। नहीं। हाँ, मैदान के जैसा हो गई, ढेर जैसा मैदान पड़ा कटील। हुआ है, जैसे कल वो थी ही नहीं। अब यहाँ मिसाल, यहाँ ठहर कर मैं दुनिया की मिसाल कैसा दे रहा है अल्लाह, उसको थोड़ा हम जान लेंगे। दुनिया की हालत भी ऐसी ही है कि उस वक्त तो बड़ी खूबसूरत और सजी सवरी मालूम होती है, जब जरा पैसा आ जाता है अरे आदमी की हालत सुधर जाती है। लेकिन अव्वल तो कभी क़यामत से पहले ही अल्लाह ताला के किसी अजाब की वजह से उसकी सारी खूबसूरती मलियामिट हो सकती है। नहीं, कोई अजाब आ जाता है, कोई वबा आ जाती है, धड़ाधड़ मरते रहती है, कोविड आ गया, क्या हुआ? जिंदगी अच्छी लगी क्या? क्या मुश्किल में थे, क्या परेशानी में थे? कब आ जाता है, क्या हो जाता है, किसी से मिलो न को, कहीं जाओ न को, क्या आ गया था? वो एकदम वबा आ गई थी, एकदम ऐसा लगता था गोया सब कुछ चला गया, इंसान एकदम परेशान परेशान हाल है। जो फ्री मिल रहा है ऑक्सीजन, उसके वास्ते भी तरसने लग गया। वो आते आते दम तोड़ गया इंसान का ऐसा हाल हो गया। तो पैसा भी इंसान को आ गया, यानी हालत अच्छी हो गई, तो इंसान क्या करता है, तकब्बुर करने लग जाता है, इतराने लग जाता है। घर की हालत बदल जाती है तो इंसान की भी औकात बदल जाती है। औकात बदलने से इंसान, हैसियत बदल गई तो औकात नहीं बदल जाना, भूलना नहीं इंसान ने। जो पुराना वक्त है, जो मगर चलता रहे, कोविड भी एक ये नहीं है। बिल्कुल लेसन इंसान को वो, बहुत बड़ा लेसन वो बहुत बड़ा लेसन। हमारे। और हाँ, कैसा बगैर सोचे हम्म, इंसान को ऐसी लपेट के लेके डाले गार्डन जो हो। पूरा ही उन्हें तोबा करना। और एक दो नहीं ना, अल्लाह। घर के घर हाँ? चले गए ना एक साथ, घर के बाबा। घर, मेरे मुशाहिदे में है, भाई हम्म, बहन माँ बाप, घर का सब घर। सब। वो पहले और जो कोई पहले देखना भी नहीं, ऐसी बीमारी जहाँ हम्म उनको जाको दीदार भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं दीदार भी सकते। नहीं कर सकते, दिए भी नहीं ना, नमाजे जनाजा कौन पढ़ाए, कैसा हुआ, कौन है। दुआ करे, अल्लाह ही को पता है। ना हॉस्पिटलों को जाने देते थे, हॉस्पिटल्स को जाकर विजिट नहीं करना था। देख, हमारे हम्म। कजिन्स भी, हमारे करीबी कजिन गए, करीबी वो कजिन, हमारे एक जो भाई थे। चले गए रहने वालों को एक सबक होगा वो। रहने वालों के लिए बहुत बड़ी ये आजमाइश है, बहुत बहुत बड़ी बड़ा है, हो कई गया वो। इबरत का मकाम। अपने ये दिन। पहले हुआ हाँ, करता था, जब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, तब ताउन आया तो वो ऐसे ताउन वो ये हैजा उनको उनको कालरा। नहलाने के वास्ते भी फुर्सत नहीं होती थी, और उनको दफन करने के वास्ते जगह नहीं होती थी। ये एक साथ गाड़ियां में ले जाते थे, कहते मुझे किसी ने हाल बताया, गाड़ा में लगे। पुराना कहीं मैं यहाँ देखी सुनी, कि गाड़ियों में ले जाते थे। पहले गाड़ियां ही थे, कहाँ बसा गाड़ियां, ये नहीं थे ना मोटर कारें, तो गाड़ियों में किसे, मुर्दों को, ये जो दो। खंधे पर रही, जो इज्जत व एहतराम इकराम के साथ वैसा नहीं, गाड़िया में जैसा ही वैसा ले जाको, और एक गड़े में कई मुर्दे। ऐसा ये बार भी हुआ। क्या हुआ, हो गया। इंसान इतनी तरक्की कर गया, इतना चांद पर चला गया, सबको बकाबू में कर लिया, क्या हुआ, एक हवा के वास्ते तरस गया ना। जो हवा एक हवा फ्रीली की तरफ अवेलेबल गया। है, हाँ। ऑक्सीजन फ्रीली अवेलेबल है, उसके लिए अल्लाह बता दिया कि एक छोटी सी है जिसकी कदर और कीमत तुम्हारे पास नहीं थी, टेकन फॉर ग्रांटेड था, देखो तुम्हें कैसा तरस रही, वो नहीं मिला तो तुम्हें कैसा धड़ाधड़ जिंदगी से हाथ धो ले रही।
تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اللہ کبھی بھی کیا بھی کر سکتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں کتنا ہی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسمنٹ ہو جائے ہمارا, کتنا ہی کہیں دور نکل جائے, کتنی ہی ترقی کر لے, پکڑ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. شکرانے نعمت کرو. اللہ کیا بولتا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں بہت زیادہ دوں گا. اس کے بعد کا یہ کیا ہے, بہت خراب ہے. لَإِن كَفَرْتُمْ, لَإِن كَفَرْتُمْ, یہ یاد رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. عذابی لشدید, عذابی میں کیا ہے بولے تو یہ با کے ساتھ زیر نہیں ہے, با یا ہے. عذابی یا یہ متکلم ہے, میرا عذاب, میرا عذاب. لا شدید, یہ لام کے اوپر زبر جو آیا وہ لام تاکید ہے, لام تاکید. لا شدید, ضرور بضرور بہت زبردست ہوگا, شدت کا ہوگا میرا عذاب. اب اگر تم کفر کرو گے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ انسان کو دیتا ہے, دے کر بھی آزماتا ہے, لے کر بھی آزماتا ہے. تو انسان ہر حالت میں شکر گزار ہونا چاہیے. اب یہاں بھی ایسا ہی ہوا, ساری خوبصورتی چلی گئی, ایک دم چلی گئی. یہ جو اللہ کا شکر نہیں کرے, سب اپنے اوپر لے لیے, کیا اب آ گیا, ہمارا وقت آ گیا, ہم یہ کاٹ لے سکتے ہیں, ہمارے قدرت, قبضہ قدرت میں ہے. قادرون, دیکھیے وہ ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری قدرت میں ہے, ہمارے قبضہ قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے. ہماری جان بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے قبضہ قدرت میں. سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہا کرتے تھے, اللہ کا جب بھی قسم کھاتے تھے, جس کے قبضے میں میری جان ہے, کیا کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. یہ غور طلب فقرہ ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقرہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. تو یہاں جو یہ بات آ گئی ان لوگوں میں کہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم یہ کاٹ لیں گے. تو جب انسان کو یہ بات آ گئی تو اللہ نے کوئی باد سموم بھیج دیا اور وہ غارت ہو گئی. تو یہاں ایک مثال ہماری زندگی کے واسطے, زندگی کی حقیقت بیان کر رہا ہے کہ جب انسان موت کا وقت آتا ہے تب بھی اس کے لیے یہ دنیا اندھیر ہو جاتی ہے. اب یہ جو بھی ہے ہمارے پاس ہے, چاہے باد سموم نہ آئے, چاہے کچھ اور آفت نہ آئے, لیکن جانا تو ہے نہیں انسان کے واسطے. کتنا ہی دنیا میں کما لے, کتنا ہی دولت میں نہا لے, لیکن سب چھوڑ کر جانا. اب یہ سب جو بھی کمایا, یہ کچھ بھی ساتھ نہیں آتا نا, خالی ہاتھ جاتا ہے نا, تو اس کے واسطے کیا ہوا, ختم ہو گیا نا سب کچھ. اس کی اپنی فردی حیثیت سے تو سب کچھ ختم ہو گیا کہ نہیں. انڈیویجولی ایوری تھنگ از نتھنگ ناؤ, ختم. اب جاتا ہے, اس کے واسطے بھی دیر نہیں کرتے, جلدی جلدی نہیں لاتی, غسال کو بلاتی, جلدی جلدی کرتی, نماز جنازہ پڑھتی ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, جا کر دفن کر. وہ ایکچولی دیر بھی کرنا نہیں ہے. ایک بات یہاں یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ دیر بھی نہیں کرنا ہے. مردہ بولتا رہتا ہے, وہ جو دوسرے نہیں سن سکتے کہ مجھے میرے مقام پر پہنچا دو, چاہے وہ پاک روح ہو, چاہے وہ دوسری روح ہو, دی ادر وے راؤنڈ, پھر بھی ہر مردے کو یہی جلدی ہوتی ہے کہ اس کے مقام پر اسے پہنچا ڈالنا, دنیا میں نہیں رکھنا ہے. جو بھی رہتے ہیں انہوں یہ کام تو ضرور کر ڈالنا کہ جلدی جلدی کرنا. 1 دن رکھنا, 2 دن رکھنا, اسے کولڈ سٹوریج میں رکھنا. کون آتے وہ آتی نا, ان کے واسطے رکھتی نا, ان کے واسطے رکھتی, یہ بھی مجبوری ہے لوگوں نہیں رکھنا, ایکچوئل نہیں رکھنا, اسے مردے کو تکلیف نہیں رکھنا. ہوتی ہے. اس سے دکھا دینا, اب تو یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے نا, ہاں ہاں ہاں, ہے نا, یہ ویڈیو کر کے دکھا سکتے ہیں یا کچھ بھی دکھا دینا اس طریقے سے دکھا کے وہ جو کرنا ہے وہ تو جلدی جلدی کرنا. کر دینا. تو یہ انسان کی حیثیت اتنی ہی ہے بس, اقوام کی حیثیت بھی اتنی ہے, نیشن کی حیثیت بھی اتنی ہی ہے, فردن انڈیویجولی انسان کی حیثیت بھی اتنی ہی ہے. جتنا ہی گزار لو, جیسے ہی نہا لو دولت میں, جتنا ہی آراستہ کر لو خود کو, پیراستہ کر لو, آخر میں وہی کفن میں لپٹ کر جانا ہے. اس وقت تو کوئی زیور کام نہیں آتا, کوئی مال نہیں کام آتا, کوئی گھر کوٹھی بنگلہ نہیں کام آتا, کوئی شان و شوکت, سب ختم. یہ انسان کا نام تک نہیں لیتے. نام لیتے ہیں کیا, نہیں, نام نہیں لیتے, انہیں میت میں تبدیل ہو گیا. عقل کو پردہ کیسا آ جاتا جب ہمیں سے یہ سب دیکھنے کے بعد بھی 2 ہماری دن یاد عقل کو رکھتے, پردہ. 2 دن یاد رکھتے, جاتے ہیں کسی کی میت پہ جاتے ہیں, تعزیت کو بھی جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, وہ زیادہ دیر یاد نہیں رکھتے.
نہیں پھر رکھتے. وہی دنیا میں مصروف ہو جاتی ہیں، وہی دنیاوی زندگی ہماری، وہی وہ شان شوکت، وہی تفریح وغیرہ اسی میں ہو جاتی ہیں. اللہ حفاظت فرمائے آخرت کی. اب یہاں کیا اس بات پر یہاں زور دیا جا رہا ہے، مقدم وہی ہونا چاہیے جو ہمیں ہمیشہ کام آنے والا ہے. دنیا میں اللہ عزت بھی دے رہا ہے، شان و شوکت بھی دے رہا ہے، دولت بھی دے رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے. کبھی دے رہا ہے کبھی نہیں دے رہا ہے، لیکن ہر حالت میں اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی شکر گزاری ہونی چاہیے. اگر مل گیا تو اترانا نہیں، اگر نہیں ہے تو شکوہ شکایت نہیں کرنا. اللہ جس حالت میں بھی رکھے اللہ کا شکر گزار ہی ہونا چاہیے. اب آ گیا تو بھی شکر ادا کرنا، خوب شکر ادا کرنا، نہیں ہے تو بھی شکر ادا کرنا. کوئی چیز تو ہے ہمارے پاس، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو بھی ہمارے پاس ایک چیز ہے. کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہدایت، ایمان، ہدایت ہے. ہمارے پاس ہدایت ہے جو ہمیں آخر کار ہمیں فائدہ مند ہونے والی ہے. یہاں کچھ بھی نہیں ملا، خالی ہاتھ چلے بھی گئے، مشکلات اٹھا کر بھی گئے، تو بھی وہاں کی زندگی جو ابدی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی خوشگواری میں گزرے گی نا، اچھی حالت میں گزرے گی، وہاں نعمتوں میں گزرے گی، نعمتوں بھری زندگی. ایسا تو نہیں ہوتا، اللہ سب کو بھی کھلاتا ہے، سب کو بھی پلاتا ہے، اچھا رکھا ہے، لیکن وہ آخری حالت میں بھی ایسا ہونا چاہیے. تو یہاں ایک مثال اللہ پانی برسا کر، یہ سارا پودا اگا کر، لوگوں کو خوشحال بنا کر یہ جو مثال دے رہا ہے، یہ کس کی مثال ہے؟ دنیا کی زندگی کی حقیقت بتا رہا ہے، اور انسان کی حقیقت بتا رہا ہے کہ جب کچھ مل جاتا ہے تو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، شکر گزارنے کے بجائے وہ اپنے آپ کو اس کا قادر سمجھ لیتا ہے. اب یہاں وہ ورڈ جو آیا ہے اس پر غور کرنے کی بات ہے. قادرون، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے قدرت میں آ گیا، سب کچھ اپنے قدرت میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے. کیا معلوم رات رات کچھ ہو جائے، ہو بھی گیا. اللہ کہتا ہے کہ رات کوئی آفت آئی، رات کو آئی یا دن کو آئی، لیلن او نہارن، دن کو آئی یا رات کو آئی، کوئی آفت، کوئی باد سموم آئی، یا کوئی کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا. تو یہاں جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ بھی سب ختم ہو جاتا ہے. حالانکہ اچھی زندگی گزرتی رہتی ہے، لیکن وہ زندگی میں مصروف ہو جا کر اللہ کو نہیں بھول جانا ہے. اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، چاہے زندگی اچھی ہو، چاہے مالداری ہو، چاہے کتنی ہی عیاشی ہو، آسائش ہو، مال و دولت ہو، لیکن مقدم ہماری زندگی ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ جانا ہے ایک دن، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے. ہمارے پاس ہے کپڑے ہے، زیور ہے، یہ ہے وہ سب کچھ ہے، کچھ نہیں کام آنے والا. وہ 2 میٹر کا جو ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے وہ؟ شاید 2 میٹر کا ہی ہوتا ہے. نہیں، کفن کتنا ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے، کفن کتنے میٹر کا لیتے ہیں پتہ نہیں، وہ 4 بھی پتہ میٹر کا، نہیں. 4.5 میٹر کا ہاں ہوتا ہاں، بس وہی کام آنے والا ہے، اور دوسرا کچھ بھی نہیں. اسی میں لپیٹا جائے گا، بس نہلا دھلا کر ختم، اس کی زندگی ختم، اس کا چیپٹر ہی ختم ہو گیا یہاں سے. اب اس کے اوپر قیامت پھر آتی ہے کیا؟ اب جو قیامت برپا ہوتی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. نہیں نہیں ہوتی. ہوتی. اس کی قیامت نہیں آ گئی ہے، قیامت اس کی. ہوتی. یہ ایک انسان جو مر رہا ہے اس کی قیامت اس وقت آ گئی. اس کے بعد جو قیامت برپا ہوتی ہے نا، اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا. دوسرا جو اٹھایا جاتا ہے ریسرکشن نا، اس کا اثر ہوتا ہے، تب انہیں اٹھ اس کا جاتا ہے. ہاں، تب اس پر اثر انداز ہوتا ہے، تب اس کا اثر اسے ہوتا ہے. قیامت کا اثر اسے نہیں ہوتا. جو قیامت میں سب مرتی ہیں، جو بھی بچے رہتی انہوں مرتے، جو مر گئے ان کے اوپر قیامت طاری نہیں ہوتی. ان کی قیامت یہی ہے. ہماری قیامت ہماری موت ہی ہے. اس وقت ہمیں جو بھی عالم نزا ہوتا ہے یا جو بھی تکلیف ہوتی ہے وہی قیامت ہے. ایک فردن میں، ایک انفرادی طور پر وہی قیامت ہے. پھر قیامت جو برپا ہوتی ہے یہ مرنے والے پر نہیں ہوتا. مرنے والے آلریڈی جو قبرستان میں ہیں مردے، ان کے اوپر روز محشر کا اثر نہیں ہوتا. اس کے بعد ریسرکشن ہوتا ہے نا، ریسرکشن دوبارہ جو اٹھاتا ہے دوبارہ پیدا. تب اٹھ جاتی ہے انہوں. وہ اٹھنے کے وقت وہ کچھ آیا ہے، میں ایک کلپ بھیجی ہوں آپ کو. ہاں بھیجی نا کل. ہاں، اس میں کیا ہے بولا، یہ وہ ہڈیاں. ہڈی وڈی کی وہ ہڈی نہیں. ٹیل بون بولتے نا، ٹیل بون بولتے شمسے. ٹیل بون، اسے ہاں، عظم واپس. الضم، عظم الضم کچھ کہا جا رہا ہے. دیکھیے ہڈی، ہاں ہڈی. ٹیل بون، ہاں، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ وہ ختم نہیں ہاں ہوتی. وہ غلطی نہیں.
गलती नहीं, सड़ती नहीं, जलती नहीं, दफन हो गया तो भी वो कुछ खराब नहीं होती। तो वहां से अल्लाह वो डीएनए ये करे तो भी उसमें भी मालूम हो जाता है, वहां से अल्लाह उठाता है। ये आपके वास्ते समझाने के वास्ते बहुत आसान है। पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाया करते थे। अबू जहल लेकर एक हड्डी बोसीदा लेकर आपके चेहरे मुबारक के सामने नचाता था, कहता था ऐ मोहम्मद कहो ये हड्डी इससे उठाता है अल्लाह, हो सकता है? असर नो तकलीफ हो सकती है क्या? आप देखो अब आसान है, हमना समझाना भी आसान है, लेकिन हमें कोशिश करने नहीं जाते। समझाना कितना आसान है। आखिरत का मामला फिर उठाता है अल्लाह, यकीनन उठाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये समझाने के वास्ते ये काफी है कि ये टेबल में जो है ना, इसी से असर नो तकलीफ हो सकती है। ये प्रूव हो गया है साइंटिफिकली। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है कि इंसानी की हकीकत बस इतनी है, जाना तो है ही आखिरत, अकेले जाना, खाली हाथ जाना। और अगर ईमान और अमल साले की पूंजी पास ना हो तो पता चलता है कि ये सारी खूबसूरती दर हकीकत क्या थी? एक ख्वाब, एक क्या बोलते हैं, एक नजारा नहीं, नजारा नहीं, ख्वाब। कि बस खत्म हो ख्वाब। गया। ख्वाब देखे, सुबह उठे तो कुछ भी नहीं है। हाँ। ख्वाब में बहुत कुछ दिखा, महल में थे, कांकी बागा में फिरते थे, बहुत अच्छी सैर करते थे, हवा में उड़ते थे, क्या क्या कुछ करते थे। ख्वाब था वो एक सुराब। अच्छा याद आ गया, सुराब। सुराब। सुराब को क्या बोलते हैं भाई? मिरेज, MIRAGE, नीरज। ये मिराज। ये जो नीरज। दूर से रेगिस्तान में नजर आता है ना, पानी की तलाश में रहता है, बहुत तलाश में रहता है, प्यासा रहता है, उसे दूर से वो रेत पर रेत पर जो शुआएं पड़ती है सूरज की, पानी के जैसा दिखता है। क्या कि वहां दरिया रहेगा या कोई फूल रहेगा, वैसा दिखता है। भाग को आता है पानी के वास्ते, देखा तो वो क्या भी नहीं, वो रेत रहती है। वो ऐसा ही है ये जिंदगी भी वैसी है, पकड़ पे नहीं आती, ऐसा गुजर जाती है। अच्छे दिन में ऐसा गुजर जाती है कि उसके बाद टटोलता रह जाता है, क्या हो गया। ये अच्छी जिंदगी कुछ अच्छे कामों में गुजार लेता, कुछ तस्बीहात में गुजार लेता, नमाजों की पाबंदी कर लेता, नमाज की पाबंदी, रोजों की पाबंदी, हज की पाबंदी, सब है। ये हज थोड़े लोग, हाँ मैं एक बात बता देती हूँ क्योंकि मुझे परसों ही मालूम हुआ एक बात। लोग हज करने के बजाय इस बात को नेकी समझते हैं कि किसी गरीब की शादी कर दें, कोई दूसरा अच्छा काम कर दें, क्या जरूरत हज को जाने की। इतनी बड़ी ये खाम ख्याली है। जो फर्जियत है उसको अदा करना जरूरी है, जो फर्जियत है उसको अदा करना जरूर। फर्ज कब हो जाता है? जब आपके पास से पैसा आ गया, ऐसा जागो है। खबर आ गया, जाको रहने का आ गया, तो आपके ऊपर फर्ज हो गया, तो फर्ज अदा कर देना पहले। वो ये फर्ज अदा हो गया। अब एक बात समझिएगा, अब पैसा आ गया, आपके ऊपर फर्ज हो गया हज, अब ओके। अदा करना था, आप नहीं अदा करे। उसके बाद पैसा चला गया, पैसा कम हो गया, ज्यादा सफर अब इनफ सफिशिएंट मनी नहीं है, फर्जियत खत्म हो गई क्या? नहीं। नहीं खत्म हुई। एक बार आप पर वाजिब आ गई तो आ गई। अब फर्जियत है आपके पर, आप कैसा भी करको जाना ही है। अब चले गया पैसा तो फर्जियत टल नहीं गई, टल कर नहीं नहीं गई। सकती। ऐसा ही नवाफिल का भी, फर्ज का भी है। थोड़े लोग फर्ज को क्या करती हैं, दिन तमाम फर्ज अदा नहीं करते, रात को खड़ जाती, रात को खड़ जाको बहुत से नवाफिल पढ़ती, तहज्जुद पढ़ती, क़ियामुल लैल पढ़ती, वो कुछ पढ़ती, क्या क्या की हो गया, क्या फर्ज टल गया? सुबह से शाम तक का नहीं, फर्ज टला नहीं बस टला। नमाज पढ़ना। ज़कात के मामले में भी ऐसा करती। ज़कात के ये कर को ज़कात को सेकेंडरी स्टेज में ला लेती। उसके ऊपर मुकद्दम क्या समझती, अच्छा ये काम कर डाले, हमें वो काम कर डाले, वो हो गया, वो ज़कात रंदे परवानी बाद में दिए जाए, कब तो दिए जाए नहीं। ये रमजान से नेक्स्ट रमजान तक अदा कर देना। आप एक ही बार अदा करने की कोई ये नहीं है, कोई ये उसूल ऐसा नहीं है कि एक ही बार अदा कर देना और कौन मिलता है उसे अदा कर देना, नहीं। और ये बात करके लोग टलाते रहते हैं कि रमजान आ जान दे, रमजान में 70 टाइम सवाब है तब देंगे। कि जिसे जिसकी जैसी जरूरत रहती है, या गरीब अपनी बच्ची की शादी करना है, उसे उस वक्त बहुत जरूरी है, उसे 10 रुपए की भी जरूरत है, बहुत ज्यादा है। आप नेक्स्ट रमजान आया तो 1000 रुपए देंगे उसे जक़ात के तौर पर, वो उतना करामत नहीं होता। उसके दिल से आज जो दिल से दुआ निकलती है, नहीं दिल की गहराइयों से जो दुआ निकलती है वो आज तक चले जाती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं मगर
परवास करती परवाज मगर रखती है, परवास और नहीं ताकत है, परवाज मगर रखती है। दिल से जो बात निकल जाती है, दिल की गहराइयों से उसकी तुम्हारे लिए जो दुआ निकल जाती है ना, वो 70 टाइम्स के सवाब से भी ज्यादा होती होंगी। तो ये बात टलाना नहीं के चलो रमजान पे करेंगे, रमजान में देंगे, वो सब जमाने की जरूरत नहीं। जैसे जिसकी जरूरत हो, कोई मरीज आ गया, उन्हें मर रहा है, उन्हें रमजान तक जीता है क्या? नहीं दे देना उसे आप दे देना, उसे आपको जरूरत है, उसे ऑपरेशन की जरूरत है या उसे कोई जरूरत है, तो उसकी जरूरत के वक्त दे देना। वो ज्यादा ये रखता है। अल्लाह ये बोले कि नेक्स्ट रमजान तक का दे दो, खत्म कर दो। रमजान के 26वें तक वो फितरा भी, जक़ात भी, सब कुछ खत्म कर लेना। नहीं खत्म हुआ बाई चांस तो उसका हिसाब रख कर फिर जो जरूरतमंद आती हैं, कई आदमियां क्या करती हैं, उसका एक फंड कर देती। बहुत ज्यादा देने वाले क्या करती हाँ हैं, है वैसे फंड वाले हाँ है ना फीसा डायरेक्ट। बच्चों के कैसा करती हैं तो डायरेक्ट कॉलेज को बंद डालती हैं फीस। अच्छा। हाँ, कैसा करते हैं, अब एक हमारे दामाद ही नासिब उनका हम्म एक ग्रुप है। उन्होंने क्या हम्म करती है, जो बच्चा फीस नहीं बन सकता, उन्हें हम्म हो जाता है, तो उनसे क्या करती है, उस इंटरव्यू लेको उसके कॉलेज से कांटेक्ट करको वो बच्चे की हम्म। फीस डायरेक्ट पे कर डालती। माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे इंजीनियर्स का काम ग्रुप करना, है, हमारे पास बेंगलुरु इल्म की में बहुत है इनकी। जरूरत है। हाँ, तो माशाल्लाह। क्या करती है ना, सब मिलको वो हम्म। बच्चे की 3 साल 4 साल जो तक कोर्स है वो पूरा कोर्स की हाँ अच्छा फीस अच्छा, इंजीनियरिंग साले का भर पूरा पैसा ले लेते हाथ को होंगे। पैसे नहीं देते। मैं परसों हाँ से ये सही बोल, है। ये हाँ अच्छा ये है। भी सही है, इनके अच्छा है कॉलेज अच्छा है। से कांटेक्ट करको 4 साल हम्म। तक हाथ को पैसे नहीं देते, एक तो ले ले को दूसरा खर्च कर डालती इन्हों हो करके। पढ़ाई की तरफ ध्यान वो नहीं बच्चे देते के माँ बाप बारे को। में पूरा इंटरव्यू ले ले को पैसे क्या हम्म। करके थ्रू कॉलेज को फीस पे कर डालती। बराबर। 4 इयर्स ये तक की हमारे भाई, पास अच्छा है। इल्म की सख्त जरूरत है। हाँ इल्म हाँ का मालूम होने की वजह से, चाहे ला हाँ इल्मियत की वजह से हमारी हाँ सारे प्रॉब्लम्स है, दुनिया के भी आखिरत अरे, के भी। हाँ दुनिया में भी हमें बहुत जिल्लत पजीर हो रही है, बहुत जिल्लत हाँ वखारी का शिकार हो रही है। क्यों? हमारे हाँ पास इल्म नहीं है। इल्म नहीं है। और दूसरा, हमें ये ला इल्मी की वजह से आखिरत का इल्म भी हासिल नहीं कर रही, कुरान भी नहीं जान रही, कुरान भी नहीं पढ़ रही, समझ रही भी नहीं। हमें हाँ, दोनों तरफ से घाटे में है। एक तो दुनिया भी घाटा और आखिरत का घाटा। दुनिया का भी घाटा और हमारा। दूसरा अब ये के शादी पर ज्यादा देने से ज्यादा ऐसा एजुकेशन के ऊपर बच्चों को हो करे तो आइंदा उनकी ये मंगना है ना, ये कम हो जाता है। हो शादी पकड़ने की ऐसा जरूरत ही नहीं है, बल्कि शादी पर जरूरत नहीं, मजलूम के। शादी को अल्लाह ताला शादी को बहुत आसान बनाया, हमें ना हाँ मुश्किल बहुत में बड़ा डाली। है। हाँ हाँ हाँ। तो एजुकेशन जो और वो बच्चे, मना है। शादी हाँ शादी मना कैसा है करना है बोले तो हाँ हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा करे वैसा करना हाँ है। हाँ सुन्नत उसवा हुस्ना हाँ हमें सुन्नत अपनाना है। हुजूर हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हुस्ना हमारे वास्ते जरूरी है। हाँ हाँ हमें अपनाना है वो। हमें क्या हाँ करती हैं, धूम धड़ाका करती हैं, बाद में उसे हाँ नजर लग जाती है। 2 दिन भी बच्ची नहीं रहती, 2 महीने 3 महीने में गलत न्यूज आ जाती है, बहुत आ अफसोस जाती होता है। है। नजर लग हाँ जाती है, नजर से बचना। हुजूर सल्लल्लाहु हाँ अलैहि वसल्लम हाँ बोली, नजर, नजर से हाँ बचो। नजर इंसान को खबर तक और ऊंट को ले हांडी तक जाती है, पहुंचा देती है ऊँट को बोले। हाथ भी तक ले यानी चले जाती है। हाँ, मौत की हद तक चले जाता है, उन्हें इतना नजर का असर होता है। नजर में जहर है बोलती। हाँ बहुत इसका ये हो गया, मुशाहिदा हो गया। बहुत ज्यादा हो सकती है नजर। नजर से बचना। हाँ हमेशा किसी की तारीफ करे तो भी क्या बोलना? सुभान अल्लाह, बारक सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह सुभान तबारक अल्लाह, माशा माशाअल्लाह। अल्लाह। माशाल्लाह बोल। हाँ, ये बहुत हम्म ही तारीफ करना। हाँ वरना हमारे ऊपर भी हम्म वबाल आ जाता है। नजर किसी की भी लग सकती है, मेरी लग नहीं जा लगती, सकता तेरी है। हाँ नहीं लगती, हाँ, माँ बाप के बच्चे को लग सकती है, तो दूसरे की क्या ये बात है? नहीं, सबके वास्ते भी। हो शमसे बहुत ये खराब है वो। बताया जाए। हाँ, नजर से बचना, किसी के हम्म, कारण भी दिखावा हाँ नहीं करना। और सबसे पहले हमारे पास कुछ आ जाता है तो पहले सदका खैरात कर देना। उससे अच्छा क्या कह होता है, रहा हाँ नजर बद टल जाती है, बलाएं सही बात। आफतें टल जाती है सदका खैरात से। तो क्या भी माल आ गया, आपको कोई खुशी हो गई, पहले सदका निकाल डालो। सही कोई बात। तकलीफ आ गई तो भी सदका निकाल डालना। सदके से बलाएं टल जाती। तकलीफ आ गई तो भी, खुशी आई तो भी, हर हालत में सदका खैरात है ना, बहुत ही ये हमारे इसका एक जुज्व बना लेना। जुज्व ला इनफिक जो कहती नहीं, इनएविटेबल चीज बना लेना जिंदगी में हमेशा। हर दिन। बात यह है कि हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा सदका करना। एक बार पूरा कर देना उसके बाद भूल जाना, वैसा नहीं। थोड़ा थोड़ा हर दिन निकालो कर को है सब। वो सदका बेहतर है जो थोड़ा थोड़ा हमेशा करते। जितनी इस्तेताअत है हाँ, जैसा भी है। रोज 10 रुपए इस्तेताअत। निकालो, 5 रुपए निकालो, रखते जाओ उसे। हाँ जो विचार गरीब आ कर। गया, कोई आ गया, कोई मुसीबत का मारा आ गया, कोई वक्ती तौर पर उसकी जरूरत पड़ गई, दे डालो। फिर दूसरे दिन शुरू करो, दूसरे दिन से शुरू करो। फिर उसे कोई ऐड कर को भी दे दो, या उसमें कोई ज्यादा हो गया है तो उसकी जरूरत कम है तो हाफ ही दे दो।
जैसे जरूरत हो, तो सदका खैरात बहुत मुकद्दम है। तो यहाँ लास्ट का यह है कि अल्लाह लोगों को सलामती के घर की तरफ दावत देता है। ये आखिरी ये पढ़िए, अब तक का तो हमें देख लिया ना। नहीं नहीं, कहाँ आ गए हम? हाँ, ये कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात, नुफ़स्सिलुल आयात को बयान करते ही लिक़ौमी यतफ़क्करून, अल्लाह ऐसे ये बयान कर रहा है ताकि लोग जो अक्ल रखते हैं उन्हों समझ लें, ये जिंदगी की हकीकत जान लें, अपनी जिंदगी की हकीकत जान लें और दुनिया की भी हकीकत जान लें। दुनिया भी खत्म होने वाली, इंसान भी खत्म होने वाला। ये यहाँ जो नजर आ रहे हैं, ये आसमानी दुनिया तक की जिंदगी, ये तो दुनिया खत्म होने वाली, उसके बाद का अल्लाह जाने, ये तो खत्म होने वाली। ये सब सपाट मैदान हो जाएगा। अब ये सब चांद सूरत ये सब क्या हो जाएंगे, सारा रोज़े महशर का ये हमें मालूम हो गया। क़यामत का हाल क्या है वो आ गया है। क़यामत की निशानियां क्या होंगी और कैसा होगा, क्या क्या हो जाएगा, ये जमीन क्या होगी, अल्लाह उसके बाद और एक पैदा करेगा, 100 मनाजिल जन्नत के होंगे और कितने ही दोज़ख के होंगे। कितने होंगे दोज़ख के शायद 19 हैं, 19 दर्जात हैं जिस पर 19 फरिश्ते हैं। या कुछ नहीं बराबर याद नहीं आ रहा, लेकिन जन्नत के तो 100 हैं, 100 दर्जे हैं। अब ये अल्लाह सभी वो कैसा करेगा, क्या क्या है, आलम बाला की चीजें या आलम गैब की चीजें हमें तो नहीं मालूम है और जानने की कोशिश भी करने की जरूरत नहीं है। जितना हमें दिया गया है उतना जान लेना। इतना तो जरूर है कि मुत्तकी परहेजगारों के लिए अल्लाह एक ऐसा मुकाम रखा है जो वाकई बहुत ही पुर पुर शिकवा है, रश करने की चीज है। जो हमें नहीं देखे वैसी चीजें हमें मिलेंगी, जिसे हमें वास्ता नहीं पड़ा वैसी चीजें, वैसी उम्दा चीजें, वैसी उम्दा नेमतें, वैसे उम्दा लिबास, वैसे किल्लत फाकिरा, उसका हमें अंदाजा किया जाएगा, उसका हमें तजुर्बा हो जाएगा, अल्लाह देगा। तो ये तो यकीनी बात है। इसका तो जिक्र आ गया, झलकियां ही सही अल्लाह दिखा दिया है कि ये सिर्फ तुम्हें दिखाया जा रहा है, लेकिन होगी इससे बेहतर, इससे बहुत ज्यादा आला, अबतर, बहुत ही ज्यादा आला होगी, बालातर होगी, इससे बहुत ज्यादा उम्दा होगी। तो उसकी कोशिश करना चाहिए। ये दुनिया फानी है, ये बताया जा रहा है, इसमें खपो मत, इसमें इतराओ मत। ये कोई इतराने की जगह नहीं है। आ गया तो शुक्र अदा करो, नहीं आ गया तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये सब खत्म होने वाली है। उसके बाद की जिंदगी जो है वो मुकद्दम है, उसके ऊपर कंसंट्रेट करो, तुम्हारे अमाल की इस्लाह करो, ईमान की इस्लाह करो, अकायद की इस्लाह करो और जाने की कोशिश करो कहाँ, जन्नतुल फिरदौस हासिल करने की हमें कोशिश करना है। अल्लाह हमें उसकी तौफीक दे, हिदायत दे और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए अल्लाह हमें। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन।